are married, but they look like very young kids. You know. So what does it change? Which subject you teach? I'm a new teacher here. So, No problem. Teacher is never new. But your place is just one. so I'm just, I work in an office and I also work in the replacement. अच्छा अच्छा, you are like me, Stephanie. क्या नाम है आपका? Which I like. She is really a person who brings Lakshmi and visit. मैम प्रिंसिपल मैम बोल देंगे अच्छा विजय विजय आज टीचर छुट्टी पे है विजय आप जाओ लक्ष्मी मैम राइट तो आप तो फिर एक दिन भी सीएम बनते हो ना तो आप एक लर्नड इंसान हो कहाँ से बिलोंग करते हैं I am a Himachali, but I'm married to a Malayali. Right now I'm a Kerala. यार कड़ी पोतलो ये कड़ी पोतलो that is Malayalam Yes. okay so you tell me one thing Malayalam is such a language. It's very difficult to write and very difficult to speak and very difficult to understand. That is where maximum army conversation is in Malayalam. Nobody understands. Only the radiographers understand. So, how do you balance digital and non-digital life? Between the spouse. Chalo, pehle spouse. Okay. So I believe actually me and my husband will also work on this. Like he doesn't like if I insist him that please wish me on WhatsApp like it's our anniversary, why don't you upload your photo now? So he's like, no, see, emotions should be between the people. So if we are not greeting each other, there is no mean of uploading the photos on the website. So same thing I do on the Mother's Day, I wish my mother. I call her. I never upload a picture and she understands. And this is the first You also thing think same? I also think same. So we are great people. We think alike. Okay, very nice, Vijay Lakshmi. You are right. So this is the first step. Okay. Second, we plan activities together. Like we do workout together. Hmm. And we do cooking together. सीखो. Then we need to call their husbands. सीखो. बोल के सीखो. India सीखो. Yes. Okay, next. The scenes busy with his task, so we are busy on the laptops. But yeah, we try to plan activities together. Do you notice to whom he is busy on laptops? On the office staff. So I don't in the system much. No? So One should have faith. But yes, of course. ना? तो faith जो है, Yes, please. that is a big binding force. है ना? कोई agreement नहीं होता, कुछ नहीं होता, एक faith होता है ना? Faith is a God. वही अल्लाह है. है ना? Okay. अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये तो पर्सनल आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया. तो मुझे थोड़ा इसमें डर लगता है क्योंकि मैं मुझे एक ही चीज़ अच्छी आती है जी पानी उबालना. बट लॉजिक ये है विजय मैम, स्टूडेंट्स के साथ डिजिटल लाइफ और नॉन डिजिटल लाइफ बैलेंस कैसे करें? शायद आज तक ये कभी डिस्कस नहीं हुआ होगा. फर्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग डिजिटल लाइफ एंड नॉन डिजिटल. So in our school we plan activities, na? We are doing work experience classes. So the teacher teaches them how to make stuff, new stuff, and they take interest, they take part in the activities. So that's how we can keep them away from the digital screens. Like a teacher demonstrate how to do the stuff. If a student is interested, he's keen, he will develop more stuff in that area. We can do sports, we do yoga. यस स्पोर्ट्स योगा चलो और Sports, yoga, dance activities, hobby development. ये जो चीज़ें होती हैं ये स्कूल में होती हैं, एकेडमिक तो पेरेंट्स भी करवा लेते हैं. ए फॉर एप्पल वो तो खुद भी कर सकते हैं. आप क्या करो, वो चीज़ें क्रिएट करो, स्टडी करो. बाकी स्कूल आपको एक चीज़ बताऊँ, एक किताब थी प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स. वो मेरे को बोलता बंदा कि सर इसमें गलतियाँ बताना क्या क्या है. मैं क्यों बताऊँ, फ्री में तेरे को मैं इसको क्यों एडिट करके दूँ. आई एम स्टूडेंट ऑफ प्रोफेसर सरदलाल हु इज द ऑथर ऑफ प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स. अगर आप यूट्यूब पे जाओगे माई इंस्पिरेशन यू विल गेट ऑल बॉलीवुड पीपल्स मैसेजेस, सुरेश बेरी, राकेश बेरी, मनोज बाजपेयी. तो आप सर्च करना आज, ठीक है, पता चलेगा कौन आया था. तो मैंने बताया
जरूरत नहीं, हम काम की बात करते हैं। तो लॉजिक क्या होता है जी? आप मुझसे पूछोगे, चलो अभी नहीं, और भी बताएगा, खड़े रहिए, गले तो नहीं मारना है? नहीं कर सेंगे। no मेरे को एक्चुअली समटाइम्स व्हेन वी गो टू द सेमिनार्स ना, हम लोग अपने छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, बाकी लोग बोलते हैं मुझसे पूछो तो मैं बताती या बताता है कोई ऐसा कि मैं कैसे डिजिटल एंड नॉन डिजिटल लाइफ को बैलेंस करता हूँ। मिश्रा मैम इस आप कुछ उत्सुक हैं? Yes, sir. I am not favor in digital. आप हिंदी में बोलिएगा। मैं डिजिटली के फेवर में ही नहीं हूँ रिगार्डिंग स्टडीज। उनको अभी वैकेशंस हैं तो बहुत सारे ऐसे वर्क हैं तो उन्हें हम बिजी रख सकते हैं। आई हैव गिवन, मैंने बच्चों को ऐसा कुछ वर्क भी दिया है एक्टिविटी से रिलेटेड, जैसे सम पेंटिंग वर्क सर। नहीं, आप डिजिटल के टोटली खिलाफ होगे? डिजिटल नहीं टोटली खराब नहीं हूँ, जब भी मुझे नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, भाइयों बहनों हमने डिजिटल इंडिया बनाना है। नहीं सर, मैं फेवर में हूँ, जब कभी मुझे टाइम होता है मैं उस पर अपनी पोस्ट शेयर करती हूँ और बहुत कुछ लिखती हूँ उस पर। कितने लोग स्टेटस डालते हैं व्हाट्सएप पे? डाला करो यार, अपने बढ़िया से फोटो खींच के डाला करो, बच्चों को पता लगे मैम क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी है। रिश्तेदारों को सड़ाने के लिए आप डालते हो वी आर राइट लंदन स्ट्रीट, वो पटियाला में बना है। ठीक, मैंने एक बार डाल दिया था, तो लंदन कब गया? मैं वहीं से बोल रहा हूँ। वो फूकने के लिए अलग होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि डिजिटल एंड नॉन डिजिटल लाइफ को कैसे बैलेंस करेंगे बच्चों में? अब मेरे को कोई रोकेगा मुझे ज्यादा? आई एम वेरी नॉटी। पहले तो मुझे ही उससे अलग होना पड़ेगा, बच्चों को शो ही नहीं करना है कि डिजिटल ये कहीं बच्चे गुरु है मैं, बच्चे इतने तेज है, उनको ये भी पता है मम्मा का पासवर्ड ऐसे ऐसे करके। आप लाख पासवर्ड लगा लो, खोल लेते हैं। यू आर वेलकम। ये डिजिटल इंडिया से इधर आ। शाबाश। मैं बहुत सेमिनार्स लिए। शी इज द फर्स्ट यंगेस्ट टीचर आई हैव। जब मैंने शुरू किया था आई वाज 90, तो मेरे को भी यही प्रॉब्लम है। ओ भाई क्या है यार, मैं जब मैं पढ़ाने आया हूँ, वो बकवास मत कर यार, बैठते हैं इधर, ये सर बड़ा जो आएगा जो करे, जो उसने पढ़ाया। मैं कहती मैंने पढ़ाना है, हम नहीं मानते हैं। फिर जब प्रिंसिपल ने आके इंट्रोड्यूस किया तो फिर बोला अरे भाई तू तो सर है, आप लगते नहीं, आप यूनिफॉर्म पहन के आए। अंकिता इज गोइंग टू से समथिंग। अंकिता Sir, I guess there should be laws made by our government to use the phone. अगर वो laws होंगे वो हर phone के लिए, तो वो automatically इतना ही use करेंगे। पर पहले बहुत लॉस involve होना चाहिए। इधर आइए, इधर आपका सेशन। इरिटेशन मत करो, अभी तो आप बोल रहे हैं मैं हमेशा खुश रहती सर मैं हूँ। कह रही हूँ आपको कि गुस्सा है? इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होनी चाहिए बच्चों के साथ भी, अपनी फैमिली के साथ भी, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मोर टाइम। मैं ये नहीं कहती कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है, एडिट इम्पॉर्टेंट है, डिजिटाइजेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इन्वॉल्वमेंट वी शुड बैलेंस इट आउट बाय स्पेंडिंग मोर टाइम विद द फैमिली एंड व्हाटएवर फ्रेंड सर्कल इन व्हाटएवर फील्ड विद द स्टूडेंट्स ऑल्सो। इट्स बेटर टू टीच देम विद द बुक एंड देन यूज इट। आई एम नॉट सेइंग नॉट टू यूज इट, बट बैलेंस शुड बी देयर कि practical learning Have you is been also- blessed with child? Yes, sir. How many? One. One. How old? She is about to be 4 in July. 4 years old. Yes. Do you play with her? Yes. How much time you are sparing for her? My whole time is normally out from going from here. उसके बाद आप अपने बच्चे के लिए डेडिकेटेड होता है। Yes. एक्चुअली यू आर राइट, जितना हम बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे अपने साथ, एक तो उनके साथ बॉन्डिंग बनेगी, उनको लगेगा ये माँ है, इसने मुझे जन्म भी नहीं दिया, ये मेरी दोस्त भी है, शी इज माय फ्रेंड। जब तक आप अपने स्टूडेंट्स के अंदर टीचर के अलावा एक दोस्त क्रिएट करोगे, तो वो अपने मन की बात बोलते जी तो करते हैं रेडियो पे, वो आपके पास स्पेशल आके बोलेंगे मैम मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है, मैम माय फादर इज नॉट बिहेविंग प्रॉपर्ली विद माय मदर। फिर आपको बच्चे की साइकोलॉजी पता लगेगी और आप अपने स्कूल में चाहे वो किस मर्जी लेवल के हों, शेयर करना चाहते हैं, उनको कोई मेंटर ही नहीं मिलता।
बच्चियां बड़ी हो जाती हैं 11th 12th में, दे स्टार्ट गेटिंग affinities with others and they fall indulge in affairs, तो वो उसको बोलेंगे कि मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ ने बड़ा ऐसे किया, बोलेगा मैं है, वो वहाँ से हमारा बच्चा डेविएट होता है। अगर हम अपने बच्चे को अपना दोस्त बना लें तो उसकी हर चीज बैलेंस्ड हो जाएगी। एग्रीड और नॉट? तो वो फैक्टर बहुत डिफिकल्ट है जी, कहने को आसान है, प्रैक्टिकली अगर आप कर लो, सभी लोग कंडीशनिंग कहते हैं इसको, हमें अपने बच्चे की कंडीशनिंग करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक लड़की एक स्कूल में प्रिंसिपल को आके बोलती कि मैडम मुझे ना ऐसे किसी ने बोला कुछ, उधर पे मैं भी बैठा था। अब हमारे अंदर ना क्या होता है ना कि अंदर में कुछ है, तो प्रिंसिपल बोले अच्छा पुलिस को बुलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैं कहा बेटा रुक जाओ, बात मैं प्रिंसिपल को बोला पुलिस को बुलाओगे, वो लड़के और आपने किसी और को भेजेंगे। मैंने लड़की को बुलाया, मैंने कहा तेरे को उसने कुछ बोला ना बेटा, उस दिन ना 2 जुतियां तो तुम वैसे ले जाना एक्स्ट्रा, पीछे 4-5 और रखना, वहीं पर शुरू कर देना मारना। ट्रीट योर चाइल्ड सेल्फ प्रोटेक्शन, ट्रीट योर चाइल्ड बी कॉन्फिडेंट, ट्रीट योर चाइल्ड टू फेस द चैलेंजेस। इंस्टेड अब बच्चा 9वीं में पढ़ रहा है, माँ उसको बहलाने जा रही है, ब्रश के लिए बोल रही है, ये नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने बच्चे को कंडीशन करना है। डिजिटल हम अवॉइड नहीं कर सकते, we cannot avoid digital, but we can condition our child that कि बेटा यार तूने इसको, एक फादर बीमार हो गया, उसके बेटे ने उससे कपड़े नहीं मांगे 4 साल। मैंने पूछा भाई तूने क्यों नहीं मांगे? कहते यार पापा is already having a tough time financially, so I don't need. That is called conditioning. That is called, तो हमें कंडीशनिंग करनी है और ये बहुत ज़रूरी है डियर टीचर्स। इसके लिए मेरे पास तो कोई मंत्र है नहीं, आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा कैसे करना है। तो थैंक यू वेरी मच विजय लक्ष्मी जी, आपका आप सबसे बेस्ट टीचर हो। आपको सभी टीचर्स का मिलने का मौका मिल जाता है, पता लग जाता है कि कौन कैसा है, राइट? थैंक यू। Any question from your side? If you have any question. आज हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है, एक beyond syllabus. Any question please? आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी प्लीज आइए मैम, मैं तो चाहता हूँ आप आइए प्लीज। जिद करता है किसी चीज के लिए, तो फिर आप उसे मना भी नहीं कर सकते, कैसे उसको हैंडल कर सकते? वेरी गुड क्वेश्चन। पहली बात तो वो बंदा बहुत खतरनाक करेगा। ये बच्चे जिद करते हैं। जिद, हाँ ना, जिद कौन करेगा? जिसने कुछ करना है। किसी भी चीज के लिए। एक एग्जाम्पल मैं खड़ा हूँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैंने जो सोचा वो करना है, मैं करता हूँ। आप अगर गलत कर रहे हैं, मैं मना कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि आप गलत कर रहे हैं, फिर आप उसको कैसे कंट्रोल करें? मतलब मैं एज ए स्टूडेंट के एज ए पेरेंट, एज ए पेरेंट्स मैं करे, एज ए सर मैं करे, मैं सबसे पहले तो बच्चे की साइकोलॉजी स्टडी करूँगा। मैं देखूंगा कि इसकी कौन से सुर से कौन सा सुर निकलता है। अब एक तो ऐसे होते हैं बच्चे, हम इधर कब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, मानते हैं, है ना? ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, डार्विन के अकॉर्डिंग रिफाइंड फॉर्म ऑफ मंकीज लॉट ऑफ नॉलेज। नहीं, मुझे मेडिकल मैंने लिया है मुझे, हाँ, तो हमें इमोशन स्टडी करने पड़ते हैं। मैंने कभी देखा होगा, आजकल तो नहीं, पहले जब हम बहुत छोटे होते थे, लोग
पिक्चर देखने जाते थे तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, पॉपकॉर्न खा रहे होते थे, कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते थे, रो रहे होते थे। और अगर उनको देख रहे दे इमिडिएट इमोशनल हो जाते हैं। पता है हमारे अंदर एक कीड़ा है इमोशंस का, हमें उस बच्चे के इमोशंस को स्टडी करना है। जितने भी बच्चे होते हैं वो ना माँ के साथ बहुत अटैच होते हैं। जो माँ होती है वो बाय बर्थ टीचर होती है। उसके पास स्टडी एजुकेशन डिग्री हो ना हो, वो सबसे बड़ा टीचर है और माँ सबसे बड़ा ज्योतिषी भी है। माँ को पता लगता है कि इसके पेट में दर्द हो रहा है, माँ को पता है इसका मुंह ठीक नहीं है। माँ बोलती है बेटा मैं तेरे दिल में रहती हूँ, मुझे पता है। तो वहां पर हमें उस बच्चे के इमोशंस को स्टडी करना होगा। नॉर्मली बच्चा कब बिगड़ता है? जब उसको उसके पेरेंट्स की तरफ से केयर नहीं होती, या उसका जो सराउंडिंग है, जो उसके दोस्त है। अब बड़े शहर में थार गाड़ी चली, हाँ जी नहीं सर नीचे नहीं, छोटे छोटे बच्चा बोलता है पापा +2 पास किया मैंने, 90% लिया, थार गाड़ी चली। क्यों? उसके डैडी ने 10th के पास लिखी। ये अक्सर सोसाइटी में चलता है। बुलेट लेके बोल्ट करने में बोल्ट लेके दो, राइट? हार्ले डेविडसन चाहिए। फैमिली 2, पापा आपने मुझे बोला था ना तो मैं फर्स्ट आऊंगा, पापा मुझे शूज दे दो। फैमिली नंबर 3, पापा आपने बोला था फर्स्ट आऊंगा, हाँ हम लोग कंसलेरी या बाबा जी मत्था टेक के आते हैं। फैमिली नंबर 4, पापा मैं फर्स्ट तो आया हूँ, बड़ा होके मैं आपको गिफ्ट करूँगा। क्या है? What is this? तो हमें बच्चे को स्टडी करना है। टीचर करता है 60%, माँ करती है 6 का उल्टा कर दो 9%। उसको मैं एक ही मतलब गब्बर के हिसाब से तो मैं एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर बच्चे को एक ही बंदा मॉडल चेंज कर सकता है, माँ रियल मॉडल, अगर वो माँ है तो जितना बेस्ट आप अपने बेटे को बेटी को समझा सकते हो, देख बेटा हमारे ये रिसोर्सेज ये है, हमारी इनकम ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, हम इतना पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते, ये जिद छोड़ दे। हाँ तूने करना है कुछ बड़ा बन के दिखा, हम तुम पढ़ा सकते हैं, हम तुमको फीस दे सकते हैं, अगर आप दे भी सकते हो ना फिर भी मत दो। जाके को बोलते हो साढ़े बड़े को बहुत पैसा है जी, 82 एकड़ जमीन बेचा में कनेडा जाओ, उत्थे जाके चाकू मारा। ये सच्चाई है। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू लिव इन नाउअडेज। एक 25 साल का 20 साल की लड़की की शादी 50 इयर्स आदमी के साथ कर देते हैं कि वो कनाडा PR सेटल है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या ये हमारा कल्चर है? नहीं है। इंडिया इज अ बिग एमर्जिंग मार्केट। अब बाहर मुफली लगा के बैठने का आपको दिख जाती है, कनाडा में नहीं दिखती। चलो उसको भी छोड़ो, हम एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाते हैं, 20-22 दिन तो लोग बात ही करते हैं, उधर से आए हैं कैसे पता नहीं। आप कंट्री बदल के जाओगे, अब तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस RC रखनी पड़ती है, तब आपको पासपोर्ट भी रखना पड़ता है, कभी भी आपको पूछा जा सकता है कौन वो आई। तो लॉजिक इज दैट हमें कंडीशनिंग करनी है अपने बच्चे की।
अगर हम यही बोलते जाएंगे कि यहाँ कुछ नहीं है, वो बच्चे के मन में आ जाएगा। पहले जब हम एंट्री करते थे लिखा होता था एम्स फर्स्ट रैंक इन इंडिया, IIT सिलेक्टेड, अब लिखा होता है हरमीत कुल्लर 7-9 पॉइंटर इन IELTS। क्या IELTS डिग्री है? कई लोग इसको डिग्री मानते हैं, इसको डिग्री। Fault is within us. We are not doing other than syllabus. We are just doing syllabus. That parents can do. आपको पता क्या करना पड़ेगा? आपको बच्चों के साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी और वो आपसे अलग में मन की बात करें, वो हर बात शेयर करें। That is called emotional strength and bonding. बहुत difficult है। Am I able to connect you all? Am I able to connect you all? ट्राई मतलब स्टार्ट जहाँ से किया ना अब तक मैं कंटिन्यूअसली मेरी आईज वेट है। Thank you, ma'am. Thank you very much. Now I am able to connect you. हाँ Same way you can connect with the students. यस अब मैंने कैसे कनेक्ट किया मुझे नहीं पता, मैं दिल से बोल रहा हूँ, यस यहाँ से नहीं बोल रहा, ठीक है ना? तो ये चीज़ है मैम, जो बच्चे की जिद है उसको हमको मैं ये ना मोस्टली सॉरी टू इंटरप्ट यू, मोस्टली आजकल हर बच्चों की जिद होती है ज़्यादा टीवी देखना, मैं आपको टीवी देखना, मोबाइल देखना, टीवी तो ये वाली आजकल जिद होती टीवी पे तो आजकल कुछ नहीं, बेकार ही होता है। है। मैं कार्टून के लिए बच्चे जिद करते हैं। जिद नहीं करते हैं, जिद नहीं करते हैं, हमें एक बच्चे को खाना खिलाना है। अब एक 3 साल का बच्चा है, उसको खाना खिलाना है, उसकी माँ पीछे पीछे घूम रही होती है और वो खा रहा होता है, नहीं होता है, चैलेंज है ना। जब तक उसकी मुंह में रोटी ना जाए एक बार नहीं खाना खाती है ना। अब क्या करते हैं, कार्टून लगा के बैठा वो देख रहा है, उसके मुंह में डालते हैं, होता है ना। उसके बाद मैंने टिक दिया, ठीक है, लोग कैसे हो, बढ़िया, बस दीदी मैं तेरे को फोन लगाना था, ये सो ही नहीं रहा है, ठीक। आप 1.5 घंटा दीदी के ऊपर लगा रहे हो, दीदी को ठीक है बात करो, बट आप अपने बच्चे के साथ बात करो। ये जो कह देते हैं कि जिन लोगों की शादी में होती महान होते हैं, वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, बुज़दिल होते हैं। Marriage is one of the biggest challenge. Am I right? Yes. और इस इंस्टीट्यूट में आजकल इतना ज़्यादा डेंट लग गया मुझे, उसका इफेक्ट किस पे आता है, बच्चों के ऊपर। वहाँ से बच्चा जिद्दी भी बनता है, बच्चा शरारती भी बनता है। जब उसको घर से वो अटैचमेंट नहीं मिलती, फिर वो फ्रेंड्स बनाता है, फिर उसके बाद वो कहता है इसको इसमें भर देते हैं। बाप बोलता है कि मैं पैसा खर्च कर सकता हूँ, बट आई कैनॉट डोंट हैव टाइम फॉर इट। सो ये तो एक बहुत जबरदस्त चैलेंज है मैम, इस पे कोई भी पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है, पर्टिकुलर कोई लॉजिक नहीं है। आप कैसे करो ना, अगर थोड़ी देर में आ जाना, नहीं कंफर्टेबल होते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें क्या है कि हम लोगों को उसकी कंडीशनिंग कैसे करनी है वो सबसे अलग है। मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ, ब्रिंग ऑल ब्लू हैंकी ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स मिल्स। आप अलग अलग फैब्रिक मिल से नीले रुमाल लेके आओ, जब आप लाओगे सब डिफरेंट कलर के, एग्री? इसी तरह से हर बच्चे का एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिसको माँ जानती है, टीचर तो सिलेबस जानता है। टीचर कब जानता है, जब उस बच्चे के साथ अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट कब होती है, अब ये तो मेरे पास सर बच्चों को बनाने और बिगाड़ने में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स का हाथ होता है। कोई टीचर अपने स्टूडेंट को कभी नहीं बिगाड़ सकता, और जो भी टीचर्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको साइकोलॉजी जरूर मालूम होनी चाहिए कि आपका स्टूडेंट्स किस बैकग्राउंड से आ रहा है। आई थिंक यस मिलॉर्ड, बैठिए। Most of मतलब some houses it happens
बैठिए बैठिए। टीचर सिखाते नहीं टीचर है। टीचर के बिहेव की वजह से अगर बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते और उनको लगता है कि हमारे टीचर का बिहेव अच्छा है, मुझे सिर्फ पढ़ना ही नहीं है। अब है जोश सब में ये बात, बिल्कुल सच बात है ये बात। हाँ जी, जब टीचर पसंद नहीं है तो वो सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ते बच्चे। यस, क्लास टीचर अच्छी नहीं लगती तो वो स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। सुबह से उठ के रोते हैं कि हमारी क्लास टीचर अच्छी नहीं है, और कोई टीचर अच्छी होती है तो हम नर्सरी क्लास के बच्चे भागे भागे आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब बच्चा नर्सरी से एलकेजी जाता है ना, तो उस टीचर को भी एलकेजी में जाना चाहिए। पता क्यों? एक तो उसको साइकोलॉजी पता सबकी, और जो एलकेजी वाला टीचर है उसके बाद यूकेजी में जाना चाहिए। यूकेजी वाले को वापस नर्सरी में ले आओ। नहीं सर, ऐसे कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? मैम एल सुनी मिश्रा मैम देखिए, बोलो रे सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर। सर बात आपकी सही है, लेकिन एक चीज इसमें मैं जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे क्योंकि अगर बच्चा एक जगह का टेस्ट लगेगा ना, फर्स्ट क्लास में उसको बहुत दिक्कत आएगी। उसको सर अलग टीचर से मिलना चाहिए, अलग सीखना चाहिए। हर टीचर अलग होती है। एक बंदा कोर्ट में झूठी गवाही देता था। किसी के ट्रक के नीचे गुल्लू मियाँ आके मर गए, तो जज साहब बोलता कि गुल्लू मियाँ कितने थे? कहता गुल्लू मियाँ को मैं बचपन से जानता था, मेरा बहुत उनके साथ प्यार था, बहुत मोहब्बत थी। कहता आप जानते गुल्लू मियाँ कितने बड़े थे? कहता जी इतने। कहता जी इतने इतने होंगे। बोलता मालूम है गुल्लू मियाँ कौन थे? कहता गुल्लू मियाँ पोल्ट्री फार्म से भागा हुआ मुर्गा था। कहता अभी दूसरा हाथ निकाला नहीं किसी। लॉजिक ये मैम, जब बच्चा नर्सरी में आया है ना, आपका नाम क्या है? हरिता मैम के साथ बच्चा अटैच्ड है, वो आपके साथ बॉन्डिंग बन जाती है। जब वो नई क्लास में जाता है तो शुरुआत में हरिता मैम के साथ सरिता मैम भी बैठ जाए थोड़ी देर के लिए। उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। मुझे नहीं मालूम है, मैंने अभी सोचा है। वो जो बच्चा है उसकी हरिता मैम के साथ बॉन्डिंग है, वो नर्सरी का बच्चा है, क्या समझ उसको है, वो आपको टीचर थोड़ी जानता है, आपको तो वो एक फ्रेंड जानता है। अभी किसी ने बोला था द मदर टीचर, है ना, हालांकि वो खुद ही छोटा सा बच्चा है जो बोल रहा है मदर टीचर। तो लॉजिक क्या है, जब आप जाते हो तो उसके साथ बच्चे की ट्रांजिशन धीरे 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 धीरे। लेटर देखा, लेटर उसके नीचे शटरिंग होती है, 15-20 दिन रहती है, उसके बाद उतार देते हैं वो अपने ऊपर। उसके बाद हरिता मैम बैक, सरिता मैम। तो ये मेरी सोच है, मैं भी देखिए टीचर का बहुत रोल है बच्चे को पॉजिटिव करने का। और 9 से 3 आप बच्चे के साथ हो, जैसे यूनिफॉर्म उतारी स्कूल भी गया। अब कोई बोलेगा जो उसके पेरेंट्स बोलेंगे, वही बोलेगा। अब अगर आपकी इफेक्टिव टीचिंग है तो वो अपने माँ को बोलेगा, माँ आपको तो बोलना ही नहीं आता। मेरी माँ टीचर ने सिखाया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे। लेकिन टीचर की इफेक्टिव टीचिंग नहीं होगी तो बच्चा बोलेगा कि मेरे टीचर को नहीं आता। यस। अब एक क्वेश्चन है मेरा, थैंक यू मैम, प्लीज बैठिए। दिल में जो बातें हैं, चलो आज को बोल दो। थैंक यू, यू वेरी ब्रेव, गॉड ब्लेस यू। I really learned so many things from you, you know. बैठिए प्लीज। अब एक क्वेश्चन है, कितने लोगों के घरों में ग्रैंड पेरेंट्स? सभी के? Do you spend time with them? Yes. कितना? खड़े, कितना? Most of the time. आपका नाम? महिमा गुप्ता. महिमा जी के लिए क्लैप। आप बैठिए मैम प्लीज, थैंक यू, थैंक यू मैम। एक मिनट, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? झारखंड से। हैं? झारखंड से। थैंक यू, वेदनाथा। ओके, गॉड ब्लेस यू। यस प्लीज, यू बिलोंग टू? I belong to Sundarnagar. नेरचौक मंडी प्रॉपर, कौन सा? Here Polytechnic College. ओके, वहाँ पर दूनीचंद जी प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल में ना। आगे जाके लेफ्ट को मुड़ जाओ तो डीएवी स्कूल आ जाता है। उससे पहले एक स्कूल और आता है गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, वहाँ चंपा बड़े राइट। क्या लिखा? मलाड, ऐसी कुछ नाम है, नहीं ऐसी कुछ नाम है। एक नहीं, आप पार्क के साथ लेफ्ट हुए कि गवर्नमेंट स्कूल आएगा, उसके बाद आगे जाएंगे तो डीएवी आएगा, और मेन रोड पे गवर्नमेंट स्कूल आएगा।
बॉयज यस बताइए। So, my real grandfather and grandmother is gone. When I was just 4 to 5 years, they passed away. So I always felt the gap that I should also have grandparents. But after marriage, in form of my in-laws, I got grandfather and grandmother. And after marriage, I can say in 24 hours, just I spend time to sleep. Rest of the time, I always dedicated to them. Anybody from Punjab here? Anybody from Punjab? I am also from Punjab. देखिए हिमाचल की ना संस्कृति बहुत डिफरेंट है। उसका रीजन बताता हूँ। हिमाचल में अभी भी बॉन्डिंग है, उन लोगों में अभी भी देवता है, वो डरते हैं, वो गॉड फेयरिंग भी है, गॉड लविंग भी है। तो वहां पर फैमिली वैल्यूज अभी डिटररेट नहीं हुई, बट जैसे जैसे आप पहाड़ से